Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. Welcome to another session of Down to Earth. The topic for today is very important. It is related to the abandonment of the cattle population. It is related to the abandonment of the cattle population. What comprise of cattle population? What are the problems associated with the abandonment of the cattle population? We are all gonna discuss in today's class, and we will see related to what different types of cattle we have, different types of varieties we have. First of all, we will try to create a little bit of mind map in our mind about the problems and about the various breeds we have, and then we're gonna see this article. So we will gonna start the session for today. The first thing that is very important, that the issue in front of us is stray cattle. Issue in front of us is abandonment of stray cattle. Abandonment of stray cattle. So there are some problems associated why there has been increase in the abandonment of stray cattle. If I will say to you that 7 out of the 10 states that has maximum number of cattle population have registered an increase in the number of stray cattle. Stray cattle, which becomes a nuisance. So what are the reasons that we are witnessing such increase in the number of stray cattle? I'm gonna try to list in some 3 to 4 points. The first important point is neglect of indigenous varieties. Neglect of indigenous varieties. Second major reason is focus on or excessive focus on crossbreeding. Third major problem is increased mechanization. Now, these are the basic reasons that have led to the increase in the number of stray cattle. First one is the neglect of indigenous varieties. Second is focus on crossbreeding, and third is increased mechanization. And if I talk about the various types of varieties that we have, the vulnerable section I am talking about. So first of all, you need to know that this stray cattle consists of cows, buffaloes and calves. Cows, buffaloes and calves. So we have basically 4 varieties of cattle. First one is the basically when I'm talking about is the indigenous breed, like गिर, साहिवाल, ठीक है, ऑल वो सब किसकी वैरायटीज है हमारी, अगर हम बात करें इंडिजीनियस ब्रीड की. सेकंड वन इज बेसिकली यूनिफॉर्म ब्रीड. सेकंड वन इज द यूनिफॉर्म ब्रीड. जब मैं बात कर रहा हूं इंडिजीनियस ब्रीड की, दे हैव मोर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिजीनियस ब्रीड्स की, और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. जब मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म ब्रीड्स की, ये वो क्रॉसब्रेड वैरायटीज हैं जो अभी रिकॉग्नाइज नहीं की गई हैं. थर्ड जो हमारे पास है वो है क्रॉसब्रेड वैरायटीज, जैसे कसरगोड हो गया, वो सब क्या है, क्रॉसब्रेड वैरायटीज. इनके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, इंडिजीनियस वैरायटीज को क्रॉसब्रेड किया जाता है एक्सोटिक ब्रीड्स के साथ. एक्सोटिक ब्रीड्स के साथ क्या किया जाता है, क्रॉसब्रेड किया जाता है, लाइक जर्सी. और लास्ट है हमारे पास नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स. नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स ये सबसे ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी वाली कैटल होती है. दिस इज वन ऑफ द कैटल दैट हैज द लीस्ट प्रोडक्टिविटी. और अगर इंडिया में ज्यादातर अगर हम समस्या देखें स्ट्रे कैटल की, देन दैट इज फ्रॉम दीज 2 वैरायटीज,
क्रॉस ब्रेड एंड नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है कि एक टाइम के बाद इनको क्या कर दिया जाता है, अबेंडन कर दिया जाता है। और हमारे देश ने फोकस किसके ऊपर किया, ज्यादा क्रॉस ब्रेड वैरायटीज के ऊपर, तो ज्यादा संख्या किसकी है, क्रॉस ब्रेड वैरायटीज की। बट इनका एक टाइम के बाद क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, इनको क्या कर दिया जाता है, अबेंडन कर दिया जाता है। और ज्यादा हमारे देश में ये पॉपुलेशन है। इंडिजीनियस को तो क्या किया है हमने, जैसे हमने देखा, वी हैव नेग्लेक्टेड द इंडिजीनियस वैरायटी डिस्पाइट दे हैव लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी। डिस्पाइट दे हैव लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इनको क्या किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है। सो दीज आर द वेरियस दैट द वल्नरेबल सेक्शन दैट वी हैव, एंड द मोस्ट वल्नरेबल वन इज द क्रॉस ब्रेड वंस एंड द नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स। Clear hai guys? So this was one of the little mind map that you need to have in your mind when I am talking about this basic article, that the population of abandonment of stray cattle. Now we will look down at our article and try to analyze it. ठीक है, ये जो हमने डिस्कस किया उसी के रिलेटेड है। See, as you can see, in India cattle can be basically classified into 4 broad groups. Defined breeds जो हमने indigenous breeds की बात करी, uniform breeds, cross breeds and non-descript cattle। जो बेसिकली हमने अभी बात करी, जो हमारे वो थे गिर, साहिवाल वगैरह, ये सब क्या है, हमारी बेसिकली जो हमारी यूनिफॉर्म डिफाइंड ब्रीड्स हैं, और जो हमारी क्या है, इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं। फिर हमारी आती है यूनिफॉर्म कैटेगरी, जिसके बारे में हमने सेकंड ग्रुप के बारे में बात किया कि जिसके बारे में अभी तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं है एज अ ब्रीड। फिर हमने थर्ड वैरायटी के बारे में बात किया, जहां पे उनको क्या किया जाता है, बेसिकली मर्ज किया जाता है, जहां पे उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है। बट चैलेंज क्या है क्रॉस ब्रेड वैरायटी का, जिसकी वजह से उन्हें अबैंडनमेंट किया जाता है, यह भी पता होना चाहिए कि उनको अबैंडन क्यों किया जा रहा है। बेसिकली the most varieties fail to adapt to Indian conditions, making them too expensive to be maintained by small and marginal farmers। ये जितनी भी क्रॉस ब्रेड वैरायटीज है, उनको बहुत मुश्किल है उनको मेंटेन करना, क्योंकि उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से एक एवरेज और स्मॉल फार्मर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो भी बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू इंडिजीनियस ब्रीड्स। सो ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अगर हम बात करें क्रॉस ब्रेड की। पर हमारे देश के ऊपर फोकस भी किसके ऊपर किया गया, क्रॉस ब्रेड वैरायटीज के ऊपर। और जो लास्ट कैटल ग्रुप है वो है नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स, विच अकाउंट फॉर द रिमेनिंग 49% ऑफ द ओवरऑल कैटल इन दिस कैटेगरी यूजुअली डिस्प्ले लो प्रोडक्टिविटी। वो बेसिकली क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, लो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं डिस्प्ले, जिसकी वजह से वो ज्यादा एक बड़ा समस्या बन के आ रही है। मान लिया कि हमने इनकी प्रोडक्टिविटी कम है, इनको अबैंडन कर रहे हैं, बट इसके रिलेटेड हमें क्या चाहिए, एक वायबल सॉल्यूशंस चाहिए, जिससे हम इसकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकें। वो वायबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, आओ देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें हॉलिस्टिक सॉल्यूशंस की, हमने बात किया कि जो क्रॉस ब्रेड और नॉन डिस्क्रिप्ट कंबाइंड है वो 70% हमारी कैटल जो पॉपुलेशन है उसको बनाती हैं, और ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो बेसिकली हमारा पहला काम क्या है कि ये जो ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर, जिसकी वजह से वो ज्यादा मेंटेन हो रही है, हमें ज्यादा क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो क्रॉस ब्रीडिंग को रोकना पड़ेगा। हमें पहले इस क्रॉस ब्रीडिंग को रोकना पड़ेगा इंडिजीनियस वैरायटीज की, एक्सोटिक वैरायटीज के पास। जो भी हमारे पास एक्सोटिक ब्रीड आई है, जो कि हमने देखा कि जो हम उनको मिक्सचर करके बना रहे हैं क्रॉस ब्रेड वैरायटीज, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो अडैप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अबैंडन करना पड़ता है और उनका एवरेज लाइफ स्पैन भी क्या होता है, कम होता है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है रिवर्स क्रॉस ब्रीडिंग। जितनी भी क्रॉस ब्रेड वैरायटीज हैं उनको एज अ हम यूज कर सकते हैं फॉस्टर मदर्स। We can use them as foster mothers। हम उनको foster mothers यूज करके उनके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के थ्रू we can prepare indigenous breeds, प्योर इंडिजिनस ब्रीड्स। क्योंकि जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ओवर एक्सोटिक ब्रीड्स, तो हमें ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, इंडिजिनस ब्रीड्स के ऊपर करना चाहिए। वी कैन गो फॉर रिवर्स क्रॉस ब्रीडिंग, और पहली चीज क्या, हमें क्रॉस ब्रीडिंग को ज्यादा रोकना होगा। थर्ड जो समस्या है कि जो ज्यादातर क्या है कि मैकेनाइजेशन बढ़ रही है, जैसे हमने डिस्कस किया, तो हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, जो अभी भी रिमोट एरियाज हैं जहां पे ये जो लो प्रोडक्टिविटी कैटल है उनको यूज कर सकते हैं एज ड्राफ्ट एनिमल्स, जहां
जहां पे मैकेनाइजेशन क्या है, बहुत कम है। जहां पे मैकेनाइजेशन है ओवरऑल हम मान सकते हैं कि वहां पे हम कैटल को नहीं यूज कर सकते हैं, पर जहां पे मैकेनाइजेशन नहीं है वहां पे हम इस कैटल को यूज कर सकते हैं। और ओवरऑल हमें पता ही है जो काउ डंग है, काउ यूरिन है, उसको अबैंडन करने की बजाय उसके हम कितने यूजेस कर सकते हैं। एज अ पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, एज अ नेचुरल प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, एज अ एडसॉर्बेंट यूज कर सकते हैं, एज अ इम्यूनिटी बूस्टर यूज कर सकते हैं। So guys, this was it for the today's session. I hope you have understood that the problems that are related to abandonment of stray cattle, क्या समस्या हम फेस कर रहे हैं abandonment of stray cattle को लेके, क्या क्या इश्यूज हैं उसके अंदर, उसके रिलेटेड वल्नरेबल सेक्शन कौन सा है, जो 4 वैरायटीज के बारे में डिस्कस किया, और इसके रिलेटेड होलिस्टिक सॉल्यूशंस भी क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो वो 10 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है स्ट्रे कैटल की, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें वो बढ़ रही है किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। सो गाइस, दिस वाज इट। आपको पेपर में इसके रिलेटेड एक लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए स्ट्रे कैटल को लेके, ताकि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स को मोल्ड कर सकते हो या आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज रिलेटेड टू डाउन टू अर्थ। थैंक यू।